Yes, good morning. Was having my breakfast, so I was a bit late. Okay. Ethan, good morning. Mano, I think he went offline. Good morning, Mano. Bhumika, good morning. Arun, Chetna, sorry. Good morning. Devanshu, good morning. Gautami, good morning. And Fiza, finally, good morning. Chalo, chalu karte hain. What about that earlier chapter? Especially those who are attending for the first time. उनके लिए पूछ रहा हूं पहले. Fiza, ratio, proportion, indices and logarithm. समझा चैप्टर? Fiza, have you solved exercise from the module? Okay, fine. करना चाहिए, हाँ, बाकी सब जन को भी. उधर नाम. Om, yes, बाकी सब. Now, we are starting with this chapter called as correlation and regression. Correlation first, okay? लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा 10-15 मिनट चालू किया था मैं, देन आई कंटिन्यू. थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा पहले एक दो स्लाइड में, फिर अगेन आ जाएंगे. ओके, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. उसमें से पहला कोरिलेशन होगा. कोरिलेशन से भी पहले बाइवेरिएंट डेटा. ओके, बाइवेरिएंट डेटा. बाय इज टू, याद है ना? जब दो चीज का डेटा साइमल्टेनियसली लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज bivariate data. The word important is simultaneously, at the same time. When the data is collected on two variables simultaneously, that is at the same time, they are known as bivariate data. Okay. Then frequency distribution derived from bivariate data is known as bivariate frequency. Bivariate data से मिलने वाला frequency, bivariate frequency. Bivariate frequency distribution is prepared in form of rows and columns. कल याद है? Rows and columns. आज भी आएगा वो. Rows and columns में बनाया जाता है. Generally, data of variable x is represented horizontal, that is row, and data on y is represented vertically, that is column. Intersection of a row and a column is called as cell. Each box there is called as cell. Number of cells will be number of rows into number of columns. Certain cells, when you prepare this frequency distribution table, certain cells may be empty. Empty means no tally marks, means zero. Bivariate frequency distribution table is also called as joint frequency distribution table or two-way classification of two variables x and y. So joint, another name uska hai joint frequency distribution table and two-way classification of two variables x and y. फिर इधर एक एग्जांपल लिया था मैंने. डेटा ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश एंड हिंदी, दो सब्जेक्ट का मार्क्स लिया जा रहा है. सो बाइवेरिएट डेटा ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज, और कुछ मार्क्स दिया है 12, 16. सो 12 इज इंग्लिश मार्क्स, 16 इज हिंदी मार्क्स, 18, 5, 7, 14 एंड सो ऑन. 30 स्टूडेंट्स है, 30 लिखने की जरूरत नहीं, मैंने 3 दिया एंड डॉट 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 किया. टेक क्लास इंटरवल एज 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 on for both these subjects. So how many class intervals are there? For English, 1, 2, 3, 4, and same Hindi. So 4 into 4, 16 cells हो जाएंगे. तो से जो boxes है, empty boxes जो दिख रहे हैं फिलहाल, these are cells. कितने cells होंगे वो? एक मिनट में. Let me draw the box and show. सॉरी, उधर भी नहीं, यहां तक ही. बाद में टोटल आने वाला है ना, ए वाले. तो 1, 2, 3, 4 एंड दैट वे 4. ऐसा भी 4 है ना. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. 4 by 4, so 16. Okay. ना यहाँ पे आपको टैली मार्क्स डालना है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे, कुछ याद होगा. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना मतलब आप क्या करेंगे, उसमें टैली मार्क्स डालेंगे. पहले का मार्क्स कितना है? 12 and 16. 12 इन इंग्लिश, सो हॉरिजॉन्टली देखना है. 12 इन
English and 16 in Hindi. So the tally mark, where is my pen? One second. कितना है 12 and 16, so it will come here, tally mark. Then 18 and 5, 18 means last and 5 means इधर आ जाएगा. Then 7 and 14, 7 in English, 7 in English means second column, and 14 means here. ऐसे tally marks आएंगे. Agreed? 30 है एक. मैंने कितने मार्क किए? मैंने कितने मार्क किए? 3. ऐसे कितने हैं? ऐसे कितने हैं? 30 स्टूडेंट्स है ना. तो क्या लगता है आपको हर एक सेल में कहीं ना कहीं टैली मार्क्स आए होगा? जरूरी नहीं है दोस्तों. लेट्स से 30 को मैं कंप्लीट कर देता हूं. 30 कंप्लीट कर देते. 3 हो गए. फास्ट कर देता हूं, मार्क्स नहीं लेता हूं. लेट मी डू इट हियर. इधर और 4 और 1 5 हो गया, तो 5 में ऐसा आएगा. इधर 3 है, इधर 2 है, 5 और 5 10 11 हो गया. इधर 5 है, लेट से इधर 6 है, 6 7, इधर 3 है, इधर 5 है, इधर 6 है. लेटर से कितने हो गए रे? 5 10, 5 काउंट करता हूं. 5 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हो गए. अभी तक 26 हो गए. लेट्स से इधर है 26, इधर 2 है और इधर 2 है. हो गए 30. आई हैव कंप्लीटेड 30. ऐसा एज्यूम करो. अब क्या करेंगे? फाइनली टोटल मारेंगे. वर्टिकल टोटल लेते हैं. नाउ हियर 2 + 2, तो इसकी टोटल कितनी हो जाएगी? 4 टैली मार्क्स. एग्रीड दोस्तों? नेक्स्ट में 5 and 5 10 and 1 11. नेक्स्ट में 3 and 2 so 5. नेक्स्ट में 5 6 9 10. टोटल कितना हो जाएगा इसका? 4 + 11 15 15 30. तो इधर 30. नाउ लेट्स टेक टोटल हॉरिजॉन्टली. लेट्स टेक टोटल हॉरिजॉन्टली. इधर कितना आ गया? 0. इधर कितना आ गया? 1. इधर कितना आएगा? 5 5 10 11 12 13 14 15 15 tally marks. Then 5 6 7 8 9 10 11 11 and 3 14. क्या हो गया? वर्टिकल 30, हॉरिजॉन्टल 30. दोस्तों ये क्या मिला मेरे को? ये 4 11 5 ये किसके मार्क्स है? विच सब्जेक्ट? डाउन दिस. फोर इज टोटल मार्क्स इन इंग्लिश. इंग्लिश का मिला, मालूम है. और इधर ये जो मिला, ये वर्टिकली जो मिला वो हिंदी का मिला. बराबर ना? हॉरिजॉन्टली जो मिल रहा है वो इंग्लिश, वर्टिकली जो मिल रहा है वो हिंदी. ओके, चलते आगे. देखो, फ्रॉम वन बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो ऊपर है वो क्या है? बायवेरिएट frequency distribution table, we get 2 types of univariate. So bi is 2, uni is 1. Bi is 2, uni is 1. Unidirectional, uniform. स्कूल डेज में हम लोग पहनते थे वो यूनिफॉर्म, सबका एक जैसा ड्रेस होता था. So that is uniform. Uni is 1. Okay, distribution table. One is marginal distribution. One is marginal. अभी जो मैंने बॉक्स बनाया ना, वो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है. 4 11 5 10 ये एक हो गया, और दैट इज इंग्लिश के टोटल. और हिंदी का टोटल 0 1 5 14, दैट इज अनदर. सो 2 इधर दिया है, देखो. मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आर ऑलवेज 2. मार्जिनल कितने मिलेंगे आपको? 2 मिलेंगे. कौन मार्जिनल? समझ में आ गया कि नहीं? 4 11 5 10 मिला के 1. देन 0 1 टोटल देखो, 4 11 5 10, this is one marginal distribution table. And then 0 1 15 14, that is another one. And conditional distribution, okay, conditional कितने मिलेंगे? P plus Q. conditional कौन? अभी सर्कल कर देता हूं, that is conditional. इंग्लिश में 0 to 5 में कितने जन है?
4 जन है। 5 to 10 में कितने हैं? 11 है। सर्कल करता हूं, 2 हो गया। 15 to 20 में कितने हैं? 5 है। 15 to 20 में कितने हैं? 10 to 15 में 5 है। 15 to 20 में कितने? 10 है। सर्कल किए मैंने, ये 4 हो गए। वैसे इधर हिंदी के भी मिलेंगे। हिंदी 0 to 5 कितने हैं? 0 है, फिर 1 है, फिर 15 है और फिर 14 है। कितने सर्कल बन रहे? सर्कल कितने बनाए? सर्कल कितने बन गए? 8 बन गए। 8 बने ना, तो इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, सम कंडीशन। अगर सम कंडीशन पे देखना है तो सब चारों मिला के, मतलब 4, 11, 5, 10, ये चारों मिला के क्या बनता है? मार्जिनल बनता है। इंडिविजुअल उनमें से देखेंगे तो कंडीशनल बनता है। तो 4 हॉरिजॉन्टल मिले कंडीशनल में, 4 वर्टिकल मिले कंडीशनल में। रहेगा याद? सेल्स कितने? सेल्स कितने? तो P इंटू क्यू। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने? P प्लस क्यू। क्या ऑलवेज 8 रहेगा? नहीं दोस्तों, ऑलवेज 8 नहीं रहेगा। समझ में आ गया? इधर 4 इंग्लिश के क्लास इंटरवल थे, 4 हिंदी के थे, तो 4 प्लस 4 8 हो गए। पर कल इंग्लिश के एज्यूम करो, इंग्लिश के 3 ही है और हिंदी के 4 है, तो 4 प्लस 3 7 हो जाएंगे। क्लियर? समझा रहे? नाउ चालू करते हैं कोरिलेशन। चालू करते हैं कोरिलेशन। तो कोरिलेशन चालू करने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू सर्टन टर्म्स। मालूम नहीं आप लोग कितने अच्छे हैं स्टैट्स में, कितने अच्छे नहीं है, थोड़ी सी बात कर लेता हूं। सो फॉर्मूलाज एक्सेट्रा स्टैट्स का बाय हार्ट नहीं करने का रहता है, उसके पीछे कुछ मीनिंग होता है। फॉर्मूला ऐसे ही नहीं आता है। ओके, सबसे पहले क्या आप लोगों को एक्स बार मतलब क्या है मालूम है? क्योंकि अभी लगेगा मेरे को सब। आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस और नॉट। डू यू नो व्हाट इज एक्स बार? क्या सबको मालूम है एक्स बार? Yes, x bar mean, and the formula, correct. Mean of x, and the formula will be summation x upon number of observation n. This is mean of x. एकदम प्लेन इंग्लिश में बोलना है तो एवरेज ऑफ x। एकदम सिंपल इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? एवरेज ऑफ x। टोटल लेने का, उसको n से डिवाइड करने का। ओके, दैट इज मीन ऑफ x हो गया, एज x बार। नेक्स्ट दोस्तों, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। क्या स्टैंडर्ड डिविएशन ये वर्ड सुना है? स्टैंडर्ड डिविएशन नाम सुना है क्या? स्टैंडर्ड डिविएशन, बाकी कुछ नहीं पूछ रहा हूं, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं, कुछ नहीं पूछ रहा हूं। स्टैंडर्ड डिविएशन नाम तो सुना है ना? बस इसका फॉर्मूला है। अब कुछ बोल रहा हूं, सुन लेना। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, सुन लेना। फॉर्मूला मैं बता रहा हूं और कैसे उसको याद रखेंगे वो भी बता रहा हूं। बाय हार्ट मत करो, उसके पीछे कुछ लॉजिक है, वो लॉजिक बता रहा हूं, उससे याद रखना। SD लिखता हूं, चलेगा ना? SD फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एट बाय द सिग्मा साइन। ऐसे साइन से भी दिखा दे, इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू। सो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है ना, वो स्क्वायर रूट होता है। इतना तो याद होगा? नहीं है तो अभी बता रहा हूं, स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज स्क्वायर रूट। ओके, नाउ क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन? दोस्तों इसके नाम में ही फॉर्मूला है, बता रहा हूं अभी। देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड
डिविएशन। क्या आपने आपको डिविएशन इस वर्ड का मीनिंग मालूम है? डू यू नो मीनिंग ऑफ द वर्ड डिविएशन? इंग्लिश में पूछ रहा हूं, मैथ्स का नहीं पूछ रहा हूं। डू यू नो मीनिंग ऑफ द वर्ड डिविएशन? यस और नो में जवाब दो ना रे। नहीं मालूम है, ओके। तेजल, वेयर वर यू लास्ट लेक्चर? यू आर नॉट देयर। ओके चलो, डिविएशन बता रहा हूं अभी अभी। आपके लिए आप सब लोगों के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी इस स्टेज पे, दैट इज अक्टूबर एंड में आ गया? व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? स्टडी, उसमें भी स्टडी। ओके ओके फाइन, ओके नो प्रॉब्लम तेजल, नो प्रॉब्लम। ओके चले ना दोस्तों, स्टडी इंपॉर्टेंट है, बराबर है। वो भी करेक्ट आंसर नहीं है। स्टडी में भी क्या एफवाई बीकॉम की स्टडी या एट दिस पॉइंट है, एट दिस पॉइंट एफवाई बीकॉम की स्टडी इंपॉर्टेंट है या सीएफसी की स्टडी इंपॉर्टेंट है? एट प्रेजेंट डेफिनेटली सीएफसी, क्योंकि अभी तक कॉलेज के एग्जाम की कुछ डेट नहीं आ गई, बट सीएफसी नजदीक है तो सीएफसी की स्टडी। नाउ डिविएशन की बात करते हैं। अभी स्टडी तो करनी है, शाम को स्टडी करने बैठता हूं, उधर आईपीएल मैच चालू है, घर वाले आईपीएल मैच देखने बैठ जाते हैं। एज्यूम करना ये सब क्या हो जाएगा? और मैं क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता हूं और आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा। कैन यू कॉन्सेंट्रेट फुल्ली ऑन योर स्टडीज? फिर बोलो ना, नहीं कर पाएंगे। ये हो गया डिविएशन। ये क्या हो गया? डिविएशन। चलो तेजल का भी एग्जांपल लेते हैं। तेजल ने बोला कॉलेज के लेक्चर चालू हो गए, अटेंड करने पड़ते हैं। क्या हो गया? डिविएशन हो गया। उसका सीएफसी छोड़ के उसको लेक्चर अटेंड करने जाने पड़ रहे हैं। क्या हो गया? डिविएट हो गया। डिविएट मतलब डाइवर्ट होना। दोस्तों अगर वो आईपीएल के मैच चालू नहीं होते तो शायद आप 5 घंटे कंटिन्यूस पढ़ते थे। एज्यूम अगर आईपीएल का मैच नहीं होता तो आप 5 घंटे कंटिन्यूस पढ़ते। अभी आधा पौना घंटा पढ़ा कि आप जाके पूछते हैं डैडी मैच देखते, तो डैडी स्कोर क्या हुआ, किसने रन बनाए, क्या हुआ? आपका 10-15 मिनट बीच में 5-10 मिनट गया ना, थोड़ा सा ही देखता हूं, एक ओवर देख लेता हूं, लास्ट के 4 ओवर देख लेता हूं, लास्ट की 1 ओवर देख लेता हूं। अरे टाई हो गया, अभी सुपर ओवर है, चलो सुपर ओवर तो देख लेता हूं मैं। क्या हो रहा है? डिविएट हो रहे हैं आप, डाइवर्ट हो रहे हैं। समझ में आया? अभी डाइवर्ट वर्ड समझा कि नहीं समझा? आपका एम क्या था? स्टडी करना, सीएफसी, बट क्या हो रहा है अभी? डाइवर्ट हो रहे हैं आप, डाइवर्ट हो रहे हैं। कुछ भी और एक ले लो, घर में कोई बीमार हो गया, पढ़ाई ठीक से नहीं होती है, वो हॉस्पिटल में है, तो घर में ज्यादा नहीं, मम्मी आप और एक डैडी है सपोज, और डैडी हॉस्पिटलाइज हो गए सपोज, तो अभी डैडी के लिए बेटा जरा डैडी को टिफिन पहुंचा के आ जा, तो क्या हो गया? आपको स्टडी छोड़ के डाइवर्ट हो गया। डाइवर्जन, ये तो वर्ड सुना होगा ना, डाइवर्ट। समझा? यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, तो ऐसा इधर। ओके, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन, डिविएशन मतलब अपना लाइन छोड़ के आजू बाजू में भटकना। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये लाइन है, ये लाइन है, ये आपकी स्टडी की लाइन। आप इस स्टडी के लाइन पे स्टडी करना चाहिए, कभी इधर जाते हैं, 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 कभी इधर जाते हैं। समझे? हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ना, वो आपका था, उसमें आप रहना चाहिए था। आप क्या हो रहा है? डिविएट हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। डिविएशन, समझा क्या? अरे डिविएशन वर्ड समझा? डायग्राम से भी समझा मैंने। ऊपर नीचे करना, अपना जो लक्ष्य है, अपना जो एम है, उससे आगे पीछे होना, दैट इज डिविएशन। सर ये क्या क्या बता रहे हैं हमको? मैं फॉर्मूला बाय हार्ट करने को नहीं बोल रहा हूं, फॉर्मूला को याद रखने की बात बोल रहा हूं। तो ये याद रहेगा, डिविएशन वर्ड याद रहेगा, तो आप फॉर्मूला आराम से याद रख पाएंगे। ओके, इधर ही नहीं, कोरिलेशन में भी डिविएशन याद आना चाहिए। तो डिविएशन मतलब इधर। अभी इधर किसका डिविएशन? तो इसमें ये जो पहला लिखा है ना,
एक्स बार, एक्स का एक्स बार से डिविएशन, डिविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन किसका निकाल रहे हैं? एक्स का। तो एक्स का डिविएशन फ्रॉम एक्स बार, एक्स का डिविएशन फ्रॉम एक्स बार, तो कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? फॉर्मूला आ रहा है एक्स माइनस एक्स बार, दिस इज कॉल्ड एज डिविएशन। मैथमेटिकली डिविएशन कैसे निकालेंगे? माइनस करके निकालेंगे। हेलो, डिविएशन, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, लेट मी टेक दैट कॉल। Can you hear me? Can you hear me? Yeah. Let's start. Let's continue. Sorry for that delay. There was an urgent call. एक urgent call आ गया था, so I have to take. और वो कॉल लेते लेते गलती से मैं लॉग आउट हो गया। ओके, गलती से लॉग आउट हो गया, देन आई हैव टू अगेन लॉग इन। सो मैंने कॉर्नर में लिखा भी, प्लीज वेट फॉर अ मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो बात हो रही थी डिविएशन, आपको मैंने डिविएशन वर्ड समझाया, याद रहेगा? डिविएशन ये मैथमेटिक्स का वर्ड नहीं, किसका वर्ड है? इंग्लिश का वर्ड है। डिविएशन, बहुत सारे चीजों में डिविएशन होता है। डिविएशन मतलब, लेट्स से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कभी कभी सुनते हैं ना क्रिकेट में भी, कॉन्सेंट्रेशन गया उसका इसलिए वो आउट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन गया इसलिए आउट हो गया, कॉन्सेंट्रेट नहीं किया इसलिए क्रिकेट में कैच छोड़ दिया, ऐसे, तो वो भी डिविएशन ही हो गया। आप खेलने में भी डिविएशन हो सकता है, आपके पढ़ाई में भी डिविएशन हो सकता है, आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आप इधर उधर जाना, दैट इज कॉल्ड एज डिविएशन। ओके, सो इधर किसकी डिविएशन की बात हो रही है? ऑब्वियसली एक्स के डिविएशन। किससे? एक्स किससे डिवाइड हो रहा है? एक्स बार से डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स बार ना, उल्टा नहीं होता है, एक्स बार माइनस एक्स नहीं, क्योंकि एक्स पहला आएगा, जब एक्स मालूम पड़ेगा, वैल्यूज ऑफ एक्स मालूम पड़ेंगे, तो ये एक्स बार आएगा। वैसे जरा सोचो ना सिक्वेंसली, एक्स बार पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स मालूम ही नहीं है और एक्स बार कैलकुलेट किया, हो सकता है क्या? अरे बोलो ना जरा, हेलो हेलो, क्या हो गया? नहीं कर सकते ना, तो फर्स्ट कम्स एक्स, देन कम्स एक्स बार, इसलिए एक्स माइनस एक्स बार। यहां तक समझा? डिविएशन, डिविएशन करना मतलब माइनस करेंगे तो डिविएशन मिलेगा, कितना डिविएट किया। डिविएशन कैन बी पॉजिटिव, डिविएशन कैन बी नेगेटिव, एग्री? डिविएशन कैन बी पॉजिटिव, डिविएशन कैन बी नेगेटिव, मैथमेटिकली। ऊपर नीचे बोल रहा था ना मैं, ऊपर गया मतलब प्लस हुआ, नीचे आया मतलब माइनस हुआ। हेलो हेलो, deviation can be positive, deviation can be negative, agreed or not? Now so, क्या नेगेटिव का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है? कैन यू कैलकुलेट रूट ऑफ नेगेटिव? कुछ मालूम है मैथमेटिकली? कैन यू कैलकुलेट रूट ऑफ नेगेटिव? नहीं। अभी x माइनस एक्स बार करेंगे, x माइनस एक्स बार करेंगे तो शायद पॉजिटिव आएगा, शायद नेगेटिव आएगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। अगर नहीं पॉजिटिव आया तो कोई तकलीफ ही नहीं है, बट अगर नेगेटिव आ गया तो रूट नहीं कर पाएंगे। नाउ बराबर है, तो रूट नहीं, इसलिए क्या कर दोस्तों, क्या व्हाट इज स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर? स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर विल बी, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, एंड दैट्स द रीजन इसका स्क्वायर किया जाता है, क्योंकि आपको उसका रूट निकालना है। रूट स्क्वायर करेंगे, अभी क्या नेगेटिव को कोई बचा? क्या नेगेटिव होने का कोई चांस है? एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं, एक्स माइनस एक्स बार कैन बी पॉजिटिव, एक्स माइनस एक्स बार कैन बी नेगेटिव, बट नाउ आई सेड एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, क्या अभी नेगेटिव बनने का कोई चांस है? कोई चांस नेगेटिव का बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो स्क्वायर, और इसका समेशन upon n, so that's the formula.
तो फॉर्मूला को बाय हार्ट मत करो, फॉर्मूला को ऐसे याद रखो नाम से, स्टैंडर्ड डिविएशन। सो डिविएशन बिटवीन, और स्क्वायर रूट है उतना एक याद रखना है, स्क्वायर रूट करना है हमको स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। डिविएशन बिटवीन x and x bar, deviation between x and x bar, but it may be positive, it may be negative, therefore take a square. The moment you take square, what will happen? The moment you take square, negative will become positive, positive will remain positive. So अभी negative रहने का कोई चांस ही नहीं, but अभी आपने square करके बढ़ाया उसको, रूट ले लो, समझ में आ गया? and upon n, this one, समझा क्या रे? फॉर्मूला समझा? कैसे बाय हार्ट मत करो, याद रखो इसको ऐसे। सो स्टैंडर्ड डिविएशन हमको है नहीं, हमको तो कोरिलेशन है। सो कोरिलेशन में तो स्टैंडर्ड डिविएशन लगेगा। मैं नहीं, मेरे को मालूम नहीं कि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन है या नहीं है। डू यू हैव स्टैंडर्ड डिविएशन सेपरेटली? सीएएफसी में स्टैंडर्ड डिविएशन